Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchid Education System online class. Today the day is Monday and the date is 14 December 2020 and our subject is English and I am your subject teacher Miss Maria. The lecture number is 1 and our book name is Oxford Modern English 5. Page number 56 and 57. Topic Perseus and Gorgon. Student, this is your book. Open your book. Students, as you are well aware that we are done with the reading and the explanation of the chapter, so today we are going to discuss the difficult words meaning. Students, take out your copies, open your copies, draw your margin lines, write date 14 December 2020, write CW, day 14 December, Monday, topic Perseus and the Gorgon, words to know, words meaning. Banquet. The first word is banquet, dawat, a special meal for lots of people. Constellation, jhurmat, a group of stars, a group of stars. Cunning, dhokebaz, chalak, trickery to get something, trickery to get something. Disgrace, disgrace, be'izzat, disgrace, be'izzat, loss of reputation or respect. Hideous, badsurat, extremely ugly. Petrified mean डरा हुआ, terrified. Tyrant mean zalim, a cruel ruler. Consequences, नतीजा, result. Menacingly, खौफनाक तरीके से, terrifyingly. Screeched, चीख पड़ा, shouted. Screeched, चीख पड़ा, shouted. Pleaded, इल्तिजा करना, pleaded, इल्तिजा करना. Make emotional appeal. Tackle, नमिटना, नमटना, निमटना. Tackle, निमटना. Handle, adventure, मुहिम जोई, a daring or risking activity, a daring or risking activity. Delighted, खुश हुआ, happy. Embarrassed, शर्मिंदा, ashamed. Embarrassed, शर्मिंदा, ashamed. Okay, now students, open your book, page number 56, exercise. We shall do our exercise also, comprehension. Answer the following questions. Students, there are some questions given. Question number A, B, C, D, E, F and G, H. I have written these questions and with their answers here. So students, you take out your copies and write answer the following questions and their answers. Question number 1 is, what can we see in the night skies today that has the same name as the hero in this Greek myth? Answer is, in the northern skies, if you look up on a clear night, you can see a constellation of stars called Perseus. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि what can we see in the night skies today that has the same name as the hero in this Greek myth? हम रात को आसमान पर क्या चीज़ देखते हैं जिसका नाम जो है वही है जो इस चैप्टर में हीरो का नाम है. इन द नॉर्दर्न स्काई, शिमाली इलाका जात के पे जब हम आसमान को देखें, इफ़ यू लुक अप एट अ क्लियर नाइट, अगर हम साफ़ सुथरी रात को ऊपर देखें, मतलब बादल ना हो आसमान पर, यू कैन सी अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, तो हमें तारों का झुरमट नज़र आएगा, कॉल्ड Perseus, जिसको हम Perseus कहते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, हु इज Dictys described? हाउ इज Dictys described and what did he do that demonstrate his personality? Dictys को इस चैप्टर में कैसे डिस्क्राइब किया गया है और वो क्या काम करता है, क्या करता है जो उसकी पर्सनैलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करे. आंसर इज, डिक्टस इज डिस्क्राइब्ड एज काइंड. डिक्टस काइंड, मेहरबान. डिक्टस को मेहरबान डिस्क्राइब किया गया है, मेहरबान कहा गया है. ही अलाउज Perseus एंड Danae टू लिव ऑन हिज लैंड. वो Perseus और Danae को इजाज़त देता है अपनी ज़मीन पर रहने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 इज, हु वाज Dictys रिलेटेड टू? The answer is, Dictys was related to King Polydectes. Dictys was related to King Polydectes. Question number 4 is, what present did King Polydectes ask his guest for and then what did he ask Perseus to get him? ठीक है, कौन सा तोहफा जो है पोलीडेक्टस गेस्ट से लेता था और उसने कौन सा तोहफा जो है वो Perseus से मांगा था? आंसर इज, King Polydectes asked his guest to bring him a horse. Then he asked Perseus to get him the head of Medusa. किंग पोलीडेक्टस अपने गेस्ट से एक आला नस्ल का घोड़ा मांगता कहा करता था उनको लाने के लिए, और उसने Perseus से क्या मांगा? हेड ऑफ मेड्यूसा, मेड्यूसा का सर. क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट डिड Perseus फील व्हेन ही सॉ द विच's wife?
परसियस ने क्या फील किया जब उसने चुड़ैलों को विचेस को देखा और क्यों? परसियस फेल्ट रिपल्स्ड व्हेन ही सॉ द विचेस बिकॉज दे वर hideous. The questions are more difficult. These questions are more difficult. Discuss them first. Question number 6 is why did Perseus steal the witch's eyeball? Perseus ने चुड़ैलों की जो वो eyeball था वो क्यों उसने चुराया? Answer is Perseus stole the witch's eyeball so that he could get them to tell him how to get to the nymph of Hera. ठीक है, उनको ब्लैकमेल करने के लिए ताकि वो बता दें कि nymph of Hera जो है वो कहाँ है. Why did Zeus, Hermes and Athena help Perseus? Zeus, Hermes और Athena ने Perseus की मदद क्यों की? Zeus, Hermes and Athena helped Perseus because Polydectes was being unfair. Perhaps they wished to see the end of Polydectes. Question number 7. Why did Perseus help Andromeda? Perseus helped Andromeda because he admired her bravery and did not want to see her killed. So, class, these were all the question answers. Now look at the question number 2. Put the following in their correct order and put said or asked at the correct name after each. हमने इन sentences को एक order में लिखना है और हमने जो है मतलब जो sentence पहले बोला गया है वो हमने पहले लिखना है और जो बाद में बोला गया है इस चैप्टर में स्टोरी में वो हमने बाद में लिखना है. तो ऑर्डरिंग करनी है एक, और हमने ये भी बताना है कि ये सेंटेंस किसने बोला था. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, देखें. जैसे हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस इरिटेटिंग मैन, ये किसने सोचा था? पोलीडेक्टस ने सोचा था. तो आगे हम क्या लिखेंगे? थॉट पोलीडेक्टस. सेकंड इज ओह परसियस डोंट यू नो आवर कस्टम्स. उसके बाद ऑर्डर में यही रहेगा. फर्स्ट का ऑर्डर ए बी फर्स्ट पहले ही बोला गया था वो पहले आएगा. बी का भी ऑर्डर यही रहेगा. सेकंड नंबर पे यही बोला गया है इन सेंटेंसेस में. और ये बोला किसने था? ओह परसियस डोंट यू नो आवर कस्टम्स. किसने बोला था क्लास? गेस्ट ने बोला था ना, एक गेस्ट ने बोला था. तो हम यहाँ पर इसके आगे क्या लिखेंगे? वन आस्क्ड वन गेस्ट, एक गेस्ट ने पूछा था. इसके बाद आप देखें, उसके बाद देखें बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव, ये भी नहीं ऑर्डर में आएगा. ठीक है, क्योंकि ये एथना ने कहा था उनको यू हैव इट यू फूल, गो टू द नॉर्दर्न शोर, ब्रिंग मी द हेड ऑफ म्यूडोसा. उसके बाद जब दावत हो रही थी तो वहाँ पर किंग ने कहा था ब्रिंग मी द हेड ऑफ मिडोसा. तो थर्ड नंबर पे ऑर्डर में थर्ड नंबर पे एफ वाला आएगा. ठीक है, ऑर्डर में थर्ड नंबर पे एफ वाला आएगा. ब्रिंग मी द हेड ऑफ मिडोसा सेड पोलीडेक्टस, पोलीडेक्टस ने कहा था. उसके बाद ऑर्डर में ई वाला आएगा गो टू द नॉर्दर्न शोर, नॉर्दर्न शोर जो सेड एथना, एथना ने कहा था. ठीक है, और उसके बाद फिर बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव, तो ये भी एथना ने ही कहा था, सी वाला. और उसके बाद एंड पे आएगा डी यू हैव इट यू फूल सेड द सेकंड विच. ठीक है, किसने कहा था? सेकंड विच, दूसरी चुड़ैल ने कहा था यू हैव इट यू फूल. तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? सेड द सेकंड विच. सो क्लास, दिस इज एन ओरल क्वेश्चन. ये आप लोगों ने सिर्फ अपनी बुक पे ही करना है, इसको कॉपी पे नोट डाउन नहीं करना. ओके क्लास, अब आप नेक्स्ट पेज पे देखें सेक्शन बी वर्क विद वर्ड्स, मेक क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स, यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स. क्वेश्चंस बनाने हैं हमने. ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स में वर्ड्स गिवन है इन वर्ड्स को यूज़ करके हमने क्वेश्चंस बनाने हैं इन सेंटेंसेस के. देखिए हमें ए बी सी डी ई सेंटेंसेस गिवन है, हमने हर सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है. ठीक है, अब देखें देयर आर 3 पीपल हु हेल्प परस्यूज. तो हाउ मैनी को यूज़ करके हम बना सकते हैं कि 3 लोगों ने परस्यूज की मदद की. हम कह सकते हैं कि कितने लोगों ने परस्यूज की मदद की. तो क्या क्वेश्चन बनेगा? हाउ मेनी पीपल हेल्प परस्यूज, हाउ मेनी पीपल हेल्प परस्यूज, परस्यूज की मदद कितने लोगों ने की. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. बी दे नो वेयर टू फाइंड द निम्फ, वाई को यूज करके हमने बनाना है. तो हम क्या कहेंगे? वाई आर द पीपल हेल्पफुल, वाई आर द पीपल हेल्पफुल, वाई आर द पीपल हेल्पफुल. दे नो वेयर टू फाइंड द निम्फ, क्योंकि वो जानते थे कि निम्फ जो है वो कहाँ मिलेगा. वाई आर द पीपल हेल्पफुल, ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा. आप लिख लें अपनी बुक पे ही आगे करके छोटा सा. सी ही यूजेस द शील्ड एज अ मिरर. अब हाउ को यूज करके क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे क्वेश्चन? हाउ डज परस्यूस यूज द शील्ड, हाउ डज परसियस यूज द शील्ड. परसियस शील्ड को किस तरह यूज कर रहा था? तो वो परसियस शील्ड को मिरर के तौर पर यूज कर रहा था.
द नेक्स्ट इज पर्सियस विल विन द बैटल। तो इसका क्वेश्चन हम बना सकते हैं विल पर्सियस विन द बैटल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, विल पर्सियस विन द बैटल। ई द सी वॉज रेड विद द ब्लड ऑफ द सर्पेंट। तो इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट और लाइक को यूज करके बनाना है। हम क्या कहेंगे, व्हाट वॉज द सी लाइक, या व्हाट वॉज द वाटर of the sea like, what was the water like, the sea was red with blood of the serpent, what was the sea water like, the sea was red with the blood of serpent। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, what was the sea water like। सो क्लास जितना हमने किया है, जितना मैंने आप लोगों को करवाया है, आप लोग भी इतनी ही एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स very neatly and cleanly on your notebooks. I will check your notebooks and you also have to learn this by heart. I will also take your test. Okay class, have a nice day. Allah Hafiz.